from the English version of Honorable President's address, and the rest may be considered as read. Just 2 months ago, we celebrated the 75th anniversary of adoption of our Constitution, and only a few days ago, the Indian Republic completed 75 years of its journey. Mahakumbh is a festival of India's cultural tradition and social consciousness. I express my sorrow over the unfortunate incident that occurred on Moni Amavasya and wish for the speedy recovery of the injured. To ensure that the journey towards Viksit Bharat continues to be guided by the ideals of our Constitution, the government has placed 4 key principles: service, good governance, prosperity, and pride at the core of governance. Initiatives like construction of 12 crore toilets under Swachh Bharat Abhiyan, 10 crore free LPG gas connections under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, ration for 80 crore needy citizens, the Subhagya Yojana, and the Jal Jeevan Mission have given the poor the confidence that they can live with dignity. Due to such efforts, 25 crore people have overcome poverty and moving forward in life. Honorable members, it is a matter of pride for the Parliament that India's daughters are now flying fighter jets, joining the police force, and leading corporate companies. Following my government decision, girls have entered and started enrolling in national military schools and National Defense Academy as cadets. Our daughters are also making the nation proud by winning medals in the Olympics. An internship program for 1 crore youth will provide them with hands-on experience in real-world work environment. In the QS World Future Skill Index 2025, India has risen to the 2nd place globally. Showcasing our leadership in artificial intelligence and digital technology, adoption in the future of work category. Similarly, India's rank in the Global Innovation Index has improved significantly, moving up from 76th to 39th position. For enhancing the ease of doing research, the One Nation, One Subscription scheme has recently been introduced, offering free access to international research materials. The inauguration of the new Nalanda University campus has revived India's ancient glory in education. Honorable members, the day is not far when an Indian citizen will travel to space aboard the indigenously developed Gaganyaan spacecraft. India's teams, whether at the Olympics or Paralympics, have consistently delivered outstanding performances. Recently, India also achieved remarkable success at the World Chess Championship. My government has utilized digital technology as a tool for social justice and equality.
Digital payments are no longer confined to select individuals or classes. Today, even the smallest shopkeepers in India benefit from this facility. My government is continuously working to ensure competence in cyber security. As a result of these efforts, India has achieved Tier 1 status in the Global Cyber Security Status and Index. Honorable members, 10 years ago, the budget for CAPEX was around 2 lakh crore rupees, which has now increased to over 11 lakh crore rupees in the last budget. I am pleased to inform you that Udhampur, Srinagar, Baramulla rail link project has been completed, connecting the nation from Kashmir to Kanyakumari through the railway line. Under this ambitious project, the Chenab Bridge has been constructed, which is the highest railway bridge in the world. Honorable members, metro projects in Delhi, Pune, Thane and Bengaluru, along with the recently launched Namo Bharat rapid rail services on the Ahmedabad-Bhuj route are shaping the cities of a Viksit Bharat. Just a few weeks ago, work began on Rithala-Narela-Kundli corridor in Delhi, which will be one of the major sections of the Delhi metro network. In 2014, the total metro network in Delhi NCR was less than 200 kilometers. Now it is more than doubled. Additionally, the decision to deploy 52,000 electric buses in the country at an estimated cost of 8,000 crore rupees will provide smooth and clean urban transportation. Honorable members, through telemedicine, over 30 crore e-teleconsultations have provided healthcare benefit to our citizens. The government is also working on creating 70 अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज हो चुका और इसी पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के प्रमुख बिंदुओं को अगर हम देखें तो किस बिंदुओं को खास तौर पर उठाया गया है और विपक्ष का क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उन्होंने विकास की एक जैसे गाथा लिखी गई है उन हर बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने किस तरीके से इंक्लूजन को, इन्वेस्टमेंट को, किस तरीके से एयरपोर्ट दुगने हुए, किस तरीके से आप देखिए कि जम्मू कश्मीर तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बारामूला से लेकर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, हर तरीके से उन्होंने कहा कि देश को जोड़ा गया है। उन्होंने दिल्ली का खास जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से मेट्रो को कनेक्टिविटी की गई है, मेट्रो को बड़े एक्सटेंसिव रूप से दिल्ली में उतारा गया है। साथ में उन्होंने हर एक बात का जिक्र किया, चाहे डिजिटल इंडिया का जिक्र किया कि ना कोई मध्यम वर्गीय जो दुकानदार है अब ठेले पर भी जो सामान बेचता है वो भी डिजिटल उसको यूज़ करता है और उसने ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस डिजिटल इंडिया के इस पूरे तरीके ने अब बाहर के देश के लोग भी ना पूछताछ करते हैं। वो चाहते हैं कि भारत का ये डिजिटल पूरा सिस्टम वहाँ पर कॉपी किया जाए। भारत का किस तरीके से नाम बढ़ा है, भारत का किस तरीके से पूरे विश्व स्तरीय नाम बढ़ा, ये तमाम बातों पर आज द्रौपदी मुर्मू ने एक बात का जिक्र किया। देखिए, जब पूरी लगातार जब भाषण चल रहे थे, लगातार जब द्रौपदी मुर्मू का स्पीच चल रही थी तो तालियां बज रही थी हर एक बात पे, क्योंकि चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे फिर वो युवाओं के रोजगार का जिक्र हो, चाहे फिर डिजिटल इंडिया का जिक्र हो, चाहे फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स, ये पूरी कनेक्टिविटी का जिक्र हो, 10 साल में जो जो काम हुआ खास तौर पर, तो कहीं ना कहीं बजट से पहले का ये अभिभाषण, क्योंकि आपने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मीडिया से संबोधित करते समय वो तमाम बातों का जिक्र किया, कहा कि हम उस रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के उसका जिक्र करते हुए उन्होंने इंक्लूसिविटी की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र जहां द्रौपदी मुर्मू ने भी किया, राष्ट्रपति ने, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, और इस बार के बजट को भी बहुत बड़ा बताया। तो जाहिर तौर पे विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाया। जब बात इंक्लूसिविटी की थी, सबके साथ सबके विकास की थी, तो विपक्ष ने ये कहा कि ये सच नहीं है, ये सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार उसके बाद अम्बेडकर का भी मुद्दा नजर आया, और अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे 6 तारीख को जब प्रधानमंत्री का रिप्लाई होगा, उससे पहले आपको विपक्ष के वो तेवर दिखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कई ऐसे बिल्कुल अदिति, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का यहाँ पर हम जिक्र करें, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी अपने अभिभाषण में जिन तमाम बातों का जिक्र किया, तो इससे क्या हम ये समझे कि आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए कोई बड़ी नीति के संकेत हैं? बिल्कुल। एक मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आयुष्मान हेल्थ केयर एक बहुत महत्वपूर्ण एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ केयर को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट द्रौपदी मुर्मू ने किया। अब आप अगर बजट के लिहाज से आज अगर हम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करें, या प्रधानमंत्री ने जब आज मीडिया को संबोधित किया, सबसे पहले तो इनकम टैक्स में आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं मिलेगी। ये अभी 4 साल है सरकार के पास, क्योंकि आपने कहा कि मिडिल क्लास के लिए सबसे राहत की बात होती है कि टैक्स स्लैब में कोई बड़ी राहत हो जाए। लेकिन आपको क्या दिख सकता है, क्योंकि जब मैं पार्लियामेंट के अंदर थी और हम जब नेताओं से और सोर्सेज से बात करते हैं, तो यही निकल कर आया कि एक तो जो ये ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम तक के जाने का सफर है, उसको आसान किया जाएगा। हो सकता है इस बजट में न्यू रिजीम में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लोग ओल्ड रिजीम को छोड़ के पूरी तरीके से न्यू रिजीम पर शिफ्ट हो जाएं। सरकार चाहती है कि 85% लोग न्यू रिजीम फॉलो करें, तो अबॉलिश कर दिया जाए ओल्ड रिजीम को। दूसरा, निर्मला सीतारमण ने कई बार डीटीसी का जिक्र किया, डायरेक्ट टैक्स कोड का। हालांकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और अगर डायरेक्ट टैक्स कोड जो 1954 के आसपास कभी लगा था, अब उसमें तब्दीली आनी थी, एनहांसमेंट होना था, वो आ सकता है। हालांकि उसके बाद अब बात होती है कि भारत में जो नज़र आया बातचीत में, और क्योंकि भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, तो भारत एक बार फिर बड़ी संख्या में कल के बजट में एक बार फिर बहुत बड़ा अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा, कॉरिडोर्स पर लगेगा, टनल्स पर लगेगा, हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर। अब होता क्या है कि जब ये सड़कें बनती हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी होती है, तो रोजगार भी जनरेट होता है। तो वो फिर आपको किसानों में कई ऐसी चीजें होंगी। देखिए, सरकार ने इस बार ये सोचा है कि जो इंपोर्ट होता है, सोयाबीन हुआ, तिल हुआ, ऐसे कोई भी तेल जो है वो अब इंपोर्ट नहीं करने, जिससे कि यहाँ पर जो किसानों के जो उपज है उसको यूज़ किया जाए। तो किसानों को लेकर भी कुछ एक बड़ा फैसला सुनने में आ सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि अब बात है स्टॉक्स और कंज्यूमर। बिल्कुल, वैसे भी ये सरकार कंज्यूमर और अभिभाषण की तमाम वो बड़ी बातें आप भी बता रही हैं, और ग्राफिक्स के जरिए हम स्क्रीन पर भी उन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया, और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ी, जो तमाम बातों का जिक्र करती नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया।